तिसंतर रवे नाम बानी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी है सेवक जन में परख गुरु निस्तर बाणी लो विचार सी। जे को गुरु होए हे बाणी महापुरख की निज कवासा होए। सलोक बल्ला तीजा ना पेटिया बिंद आमा जा दुख कना कतना चुकैंद जिन्ना नी पेटे पैकी नाही जावन दुख कना कदे ना चूकै चिंद कापड़ जिमें पछोड़िए कड़ी मोहत कड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल। महला तीजा त्रिभुवन ढूंढी सजना हाँ मैं बुरी जगत ना चोर हियड़ सच चाओ। नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोण हर नाम समाने आपे भगति लायोण गुर शब्द निशान सन्मुख सदा सोहणे सच्चे दर जाने एथ ओथ मुक्त है जिन राम पछाणे। तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हाँ कुर्बाने। तन तन
तन से जन जिन हर सेविया तिन हाँ कुर्बाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू की वार दी चौथी पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 10 ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। बहुत विद्वान ਹਨ। मैं संगत ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ गुरु ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ 1 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 350 ਸਾਲ। 150 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ 200 ਸਾਲ ਬਚੇ। ਉਹ 200 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਵਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ,
मेरा ख्याल है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾ ਤੁਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ नहीं करना चाहिए, क्योंकि असी कौम की तकदीर इदां दी लिख रहे हैं कि शायद साडे बच्चों तो पढ़ी नहीं जाएगी। साडे पुरखियां ने चरखड़ियां ते चढ़ के बंद बंद कटा के सुनहरी अखरां विच लिख दिती, दुनिया पढ़दी है। मतभेद होना, विचारां दा डिफरेंस होना, ये किसी कौम की मैं समझदा प्रगति का प्रतीक है कि असी प्रगति विच आ, असी तरक्की विच, असी अगे चल रहे हैं और इसका सन्मान करना चाहिए। गल्लां असी बहुत करते हैं। दुनिया का जिहड़ा डेमोक्रेटिक सैटअप है उहदे विच बकायदा विरोधी धिर की पोस्ट भी है, उहदे बेंच कुर्सियां वखरियां हुंदियां ने और उन्होंने मॉरल ड्यूटी इस गल की होंदी है कि रूलिंग पार्टी का उन्होंने विरोध करना होंदा है, बशर्त कि चंगी सोच नाल कीता जाए। पर असी इन्ने नीवें उतर जाइए कि गंदे भैड़े माड़े शब्द एक दूजे के बरखिलाफ बोलीए। आओ तौबा करिए। एक सिख नूं दूजे सिख की तुहीन नहीं करनी चाहिए, सिख नूं सिख का सन्मान करना चाहिए और विचारां दे मतभेद नूं एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरी दो हाथ जोड़ के बेनती है कौम के भले वास्ते, कौम की चढ़ती कला वास्ते। और ये जिहड़े लोग सानू अज धर्म के नां ते लड़ते मिलते ने, ये तुहानूं विआह शादियां विच इकट्ठे पकौड़े खांदे भी मिलणगे। फिर उस वेले शर्म आउणी चाहिदी है कि तुसीं पकौड़े इकट्ठे बह के खा सकते हो तो कौम का मसला इकट्ठे बह के हल नहीं कर सकते। भाई इहदा अर्थ की है कि तुसीं कौम के प्रति बेईमान हो, अपने प्रति तुसीं ईमानदार हो। धर्म के प्रति ईमानदार बनीए। अपना नुकसान हो जाए, किथे वो सतगुरां दे बोल जिहड़े साडे आगू बोलिया करदे सी कि मैं पंथ जीवे मैं उजड़ा, मेरा नुकसान हो जाए, मेरे कौम की चढ़ती कला होनी चाहिए है। आओ उन्हां पुरखियां दे अनुयायी बनीए। मैं बेनती करांगा प्रिंसीपल साहब नूं कि वो गुरबाणी विचार सानू सरवण करवाउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, सतगुर बिटों बारिया, जित मिले खसम संभालिया। जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे से बन जा रिया। सतगुरु है बोहिता, बिरला किनै विचारिया। कर कृपा पार उतारिया। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कबन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च इस पावन इतिहासक अस्थान बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के पवित्र इतिहासक अस्थान ते गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे अमृत वेले तो हाजरी भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ अते होर जो मीडिया राही घर बैठे सतगुरु के पावन कीर्तन नूं, पावन संदेश नूं सरवण कर रहे हैं। सतगुरु ने बख्शिश की कि सानू उन्हां दे पावन चरनां नाल जुड़न दा यह पवित्र समा प्राप्त होया है। सन्मानयोग हजूरी रागी जथे पासों आप जी ने आसा की वार दा कीर्तन सरवण किया। उपरंत चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी विचार दे अनुसार मेरे अजीज सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी
ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1088 ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ अपना ध्यान गुरु चरणों ਨਾਲ जोड़ते हुए एक बारी फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस बार दियां टोटल 22 पौड़ियां ने। ये पौड़ियां सारियां तीसरे पातशाह दियां उचारण कीतियां हुई ने, क्योंकि बार उन्हां द्वारा उचारण की हुई है। और जिहड़े श्लोक सरवण कीते ने वो भी दोनों गुरु अमरदास पातशाह जी दे उचारण किए हुए हैं। जिमें असी शब्द विचार दे विच रहाओ दी पंक्ति नूं असी केंद्री भाव मनते हैं, तिवें बजुर्गों तो सियाणियां तो उस्तादां तो जो कुछ सानू प्राप्त होया कि जेकर असी रहाओ दे बंद तो विचार शुरू करिए, कीर्तन शुरू करिए ते बाकी पंक्तियां दी व्याख्या फिर उहदे नाल अपने आप प्राप्त हुंदी जांदी, समझ लगदी जांदी। इसे तरह 12 के अंदर सियाने लोग इस गल नूं मनदे ने कि बार दा असली मजमून जो है वह पौड़ी दे विच है। आसा की बार दा असीं कीर्तन सरवण करते हैं, उस कीर्तन दे विच जदों श्लोकां दी पौड़ी की समाप्ति हुंदी, पौड़ी नूं दोबारा रिपीट किया जाता है। हो सकदा सानू बहुतिआं नूं इह ख्याल होवे कि पौड़ी नूं इस करके तबले वाले सिंह रिपीट करते हैं कि शायद जो विचकार वाले सिंह ने, हैड ने, वो थोड़े रिलैक्स हो जान, उन्होंने अगे सोचण वास्ते कि की गायन करना समा प्राप्त हो सके। ये नाल एडिशन की जा सकती, लेकिन असल परपज उहदा है कि बार केवल पौड़ियां ने। जो मजमून सतगुरु जिस मजमून के उत्ते गल कर रहे हैं वो पौड़ी विच है, वो मजमून सानू चेते रहे। इस करके ये साडी परंपरा है पंथक तौर के उत्ते सिख धर्म के अंदर कि आसा की वार के कीर्तन समय वो पौड़ी नूं दोबारा फिर रिपीट करते हैं। और पौड़ी की जो आखिरी पंक्ति है, जे उन्होंने केंद्र मन के असीं विचार आरंभ करिए तो फिर अपने आप ही बाकी जिहड़े श्लोक ने, पौड़ी दीयां पंक्तियां ने, वो सारियां सानू अपने आप समझ लगदियां जांदियां। ते सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की, गुरु अमरदास पातशाह जी ने, जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं गुरु नूं समर्पित किया, बहुत लंबा समा कर्म कांडा विच हंडाया। तकरीबन 20 बारी इतिहास कहता कि वो तीर्थ यात्रा ते गए और वख-वख लोकां दे नाल बाह पिया। जीवन का बहुत बड़ा तजर्बा जदों गुरु अंगद साहब जी की शरण विच आए तो गुरु अंगद साहब जी की शरण विच आके उन्होंने अपने आप को किवें डेडिकेट किया, किवें समर्पित किया, वो उन्हां दी बाणी राही सानू प्राप्त होंदा है। क्योंकि गुरु की असली तस्वीर उन्हां दी बाणी है, उन्हां दे शब्द है। एक बचन असी रोज पढ़ते हैं, ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपीए बिचों आप जाए। कि जे किते जो गुरु सानू गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में शब्द के रूप में जो प्राप्त होया, इहदे सामने फिर अपना सिर भेंट करना चाहिए, भाव आपा भाव त्याग देना चाहिए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपीए बिचों आप जाए। एक बचन उन्हां दा होर तुहाडे सामने रखा, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार। हे नानक सेवक उसनूं कहा जा सकता है जो अपना सिर उतार के रख देवे। सिर उतारन का भाव जो अपनी मत असी बना के बैठे हैं, अपनी ख्याल बना के बैठे हैं, अपनी विचार बना के बैठे हैं, उस विचार नूं उतार के रख देना
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1541 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ 11 ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਔਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆਵੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ ਅਸੀਹਾਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਢੋਣੀ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਲ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਰ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਸਸ ਕਿਰਨ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਹੇ ਭਲ ਭੱਟ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ,
ते सतगुरु कहते मैं लिख के दे रहा, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का वह करन विचार। ते सतगुरु पातशाह जी, गुरु अमरदास पातशाह जी पौड़ी की आखिरी पंक्ति के अंदर प्रभु जना की गल कर रहे। श्लोक के अंदर पहला गल की आप जी ने कि जिन्हों ने अपनी जिंदगी में रब की गुरु की भेंट नहीं की, गुरु का मिलाप नहीं किया ना, और जिन्हों के अंदर गुरु का भय अदब नहीं, उन्होंने जिंदगी बड़ी खुआर हो रही है। लेकिन जिहड़े लोग गुरु के अदब विच, गुरु के भय विच जिंदगी बतीत करते, धन धन से जन, इत्थे जन शब्द बहुवचन है, ਉਹ ਜਨ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਬੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। गुरु की सेवा जिथे असी मुट्ठी चापी राही, पोशाके भेंट करके, लंगर की सेवा करके, होर तरीकों के नाल करते हैं ना, मत्था टेकते हैं, जो मालक ने दिता उहदे विचों जथा शक्त गुरु के अगे भेंट करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये सारा एक अंग है, उहदा पार्ट है। लेकिन सतगुरु कहते भी असल विच गुरु की सेवा है गुर सेवा गुर शब्द विचार। और इस गल के उत्ते गुरु अमरदास जी ने बहुत महत्वपूर्ण गल की है, क्योंकि गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु अंगद साहब जी के कुड़म लगते हैं। ये तो हो नहीं सकता भी गुरु अमरदास जी ने कभी गुरु अंगद साहब को वेख्या ना हो। बीबी अमरो जी जदों लैके गए ने उस तो पहला कभी दर्शन ना किए हो। अक्सर भतीजे नूं ब्याहण आए होणगे, जदों गुरु अंगद साहब जाते होणगे बेटी नूं मिलण वास्ते बहिंदे होणगे, गल्लां बातां करदे होणगे। लेकिन अज जदों 11 साल सेवा करन तो बाद आप जी ने अपनी जिंदगी के अंदर झात मार के वेखी, अपनी जिंदगी नूं परचोलिया ते सतगुरु ने एक निर्णय दिता संसार के सामने, सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठा मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। कि भाई गुरु की सेवा असल विच गुरु के शब्द की विचार करके उहदे अनुसारी होना। नंबर 2 दे उत्ते रब की सेवा। हुण रब की सेवा किवें करीए? जे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पुछ के वेखीए, सतगुरु आप ही इहदा जवाब दिंदे। वो कहंदे हर की टहल कमावणी जपीए प्रभ का नाम। हरी दी टहल का भाव है कि जदों असी प्रभु का नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, उहदी प्रैजेंस का हर थां दे उत्ते आनंद माणदे हैं, उहनूं हाज़र नाज़र समझते हैं, ये उहदी सेवा है। और जदों मनुख उहनूं हाज़र नाज़र समझदा सारियां थावां दे उत्ते इस गल नूं अपनी जिंदगी च तस्लीम करदा है, हर की टहल कमावणी जपीए प्रभ का नाम। ते फिर तीजी सेवा साडे सामने आउंदी खलकत दी सेवा, मानवता दी सेवा, मनुखता दी सेवा। क्योंकि सिख धर्म निज तो उपर उठ के सरबत दे भले वास्ते काम करदा है। सिख दा जीवन सरबत दे भले वास्ते समर्पित रहिंदा है। साडी अरदास जगत जलंदा रख लै, अपनी किरपा धार, जित द्वारे उभरै, तितै ले उबार, सभे जी संभाल, अपनी मेहर कर, अन पानी मुझ उपाए, दुख दालद भन धर। इहदा भाव मनुखता दी सेवा, मानवता दी सेवा। और जिहड़े लोग भगौड़े होकर भजदे सन ना भी असीं मुक्ति लैनी है, रब दे नाल सांझ पाउणी है, रब दी दरगाह विच प्रवान होना है, गुरु नानक साहब जी ने साडी डायरैक्शन ही चेंज कर दी। सतगुरु कहंदे तू भगौड़ा नहीं होना, तू जदों
रब की दरगाह विच प्रवान होने की गल तेरे सामने आएगी ना, तो तेरे वास्ते लाजमी होएगा कि बिच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन पाई है। प्रभु की दरगाह विच तैनूं थां टिकाणा, आसन तां प्राप्त होना है, बैठक तां प्राप्त होनी उहदी हजूरी विच जदों तूं जातां पातां दे वितकरिਆਂ तो उपर उठ के भेद भाव, रंग नस्ल, जात पात, देश, एरिया, हर गल तो निर्लेप होके मनुखता की सेवा करे। तो सतगुरु कहते भी ये जीवन जाच जेडे लोग अपनी जिंदगी विच धारण करते हैं, धन धन से जन जिन हर सेविया, जिन्हां ने हरि की सेवा की, भाव दा सिमरन किया है, उहदे सिमरन के अनुसार अपने गुण अपने अंदर नाजिल किए ने, गुण पैदा किए ने जो रब्बी गुण ने। तो गुरु अमरदास पातशाह कहते मैं फिर की कर सकदा उन्हां वास्ते, कहते एक काम कर सकदा है, हों तिन हों कुरबाने, मैं उन्हां तो कुरबान जा सकदा, सदके जा सकदा। इहदा मतलब जिहड़ा गुरमुख जन है, जिहड़ा प्रभु का सेवक है, वह एडा उच्चा सुच्चा है, एडा पवित्र है कि गुरु अमरदास पातशाह जी वर्गी शख्सियत वो तो कुरबान जा रही है, वो तो सदके जा रही है, वो तो बलिहार जा रही है। उसका जीवन किदां दा है कि वह भै तो पासे होकर जिंदगी बतीत करता, जिवें गुरु अमरदास पातशाह जी पहली पंक्ति के अंदर बचन करते हैं, जिन्हां गुर नहीं भेटिया भै की नाही बिंद, जिन्हां ने गुरु नूं नहीं भेटिया, गुरु का मिलाप नहीं किया, ते अपने अंदर भै नूं नहीं जानिया, रब्बी भै नूं अपने अंदर कबूल नहीं किया, रब्बी डर नूं अपने अंदर कबूल नहीं किया, अपने अंदर प्रवान नहीं किया, कि वह जन बन सकता है, कि वह गुरमुख हो सकता है, कि वह ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, कि वह संत जन हो सकता है। ये आपां गल गुरु नानक पातशाह जी नूं पुछ के वेखदे हां। जे मैं भुलदा ना होवां ते सिद्ध गोष्ठ के अंदर 27 नंबर पौड़ी है, सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की, कहते असल में गुरमुख का जीवन हुंदा ही भै तो आरंभ है। गुरमुख साचे का भौ पावे, ये नहीं पे उन्हें भै की नाही बिंद, अपनी जिंदगी दे विच गुरु दे अदब नूं, गुरु दे भै नूं, रब्बी भै नूं त्याग के जिंदगी बतीत करदा है। वो सारी जिंदगी अपनी जिंदगी आरंभ ही इत्थों करदा कि गुरमुख साचे का भौ पावे, अपनी जिंदगी च भौ नूं प्राप्त करदा है, गुरु दा भौ, रब दा भौ। और जिन्हां ने प्राप्त किया वो फिर अपनी जिंदगी च इन्ने निडर हो गए। नौवें पातशाही के सामने पंडित आते ने, सारे हिंदुस्तान घूम चुके सानू, लेकिन किसी ने बाह नहीं फड़ी, पर सतगुरु ने बाह फड़ ली और बाहें जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजे बाह ना छोड़ी है, एडी दृढ़ता। ये जीवन केड़ा जीवन है? ये जीवन वो जीवन है, पै काहू को देत न पै मान त्यान, को नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। कोल 9 साल का बेटा बैठा होए ते बेटे नूं सवाल किया जाए भी इसकी विपता मुक सकती है, पर ये वास्ते कुर्बानी देने वाला चाहिए। और किड्डा भै विच रहण वाले सतगुरु कलगीधर पातशाह जी होणगे, जिहड़े 9 साल की उम्र च कहंदे ने भी सच्चे पातशाह तुसीं जाओ, पिता जी तुसीं कुर्बानी दिओ। ये किहड़ा जीवन है? ये वो जीवन है जिहदे विच रब्बी भै नूं कबूल करके ये सोचा जा रहा, जिवें गुरु नानक पातशाह जी बाबा देखे ध्यान तर जलती सा पृथ्वी दे सियाई, बाजों गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहते टुंबिया परख की भी बेटा तेरे सिर दे उत्तों पिता का साया उठ जाना, ध्यान मार के देख। कलगीधर पातशाह जी ने एक गल की कि सच्चे पातशाह मेरे सिर तो उठ जाना ना, लेकिन मेरे तो बाद होर बच्चों को बहुत जरूरत है, थोड़ी अपनी कुर्बानी दिओ। ते निरभौ जपै सगल भौ मिटै, अपनी जिंदगी के अंदर ये निडरता। आ हुण पंदरवाड़ा चल रहा है, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी 10 लाख के सामने जूझते। साहिबजादे पहला भी बहुत ने, बाबा श्री चंद जी, बाबा लखमी दास जी, बाबा दातू जी, बाबा दासू जी, फिर बाबा पिरथिया जी,
बाबा महादेव जी, उन्हां तो अगे भी आपां गिणती कर सकते हैं। लेकिन जिहड़ी दात प्राप्त हुई है बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, वो पदवी वो लोग नहीं प्राप्त कर सके। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब जी तो उपर कोई गल साडे सामने नहीं। सतगुरु पातशाह जी ने जो नवेड़ा दिता है, जो निर्णय दिता है, पुतरी कौल ना पालियो, कर पीरों कन मरटी है, दिल खोटे आकी फिरन, बन पार उचायन छटी है। लेकिन जदों बाबा अजीत सिंह जी की गल आउंदी है, बाबा जुझार सिंह जी की गल आउंदी है, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी की गल आएगी, वो इन्हां तो बिल्कुल निराली है। और देखो तुसीं आपां अरदास करते हैं 2 टाइम, पहला गुरु साहबान नूं चेते करते हैं, फिर 10 पातशाहां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी। उस तो बाद 5 प्यारियां ते नैक्सट गल कहती चलती है 4 साहिबजादे, जिन्हां ने अपना आप निशावर किया कौम तो, धर्म तो, सच तो, और अपनी जिंदगी के अंदर इस गल नूं निभाया है कि पुत्र तो सपुत्र किवें बनीदा। आपां गुरु अमरदास जी की गल पढ़ते ना, विचार पढ़ते, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें, जो दादा जी करके गए, जो परदादा जी करके गए, उसनूं निभाउणा और अपने आप नूं ओह तो निशावर करना। बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी दोनों ने कुर्बानी दी चमकौर के युद्ध के अंदर। पहला पुत्र भेजिया, लेकिन दूसरे पुत्र नूं कहण दी लोड़ नहीं पई, वह आप उठ के आ गया कि सच्चे पातशाह पिता जी, जिवें मेरा भरा जाके कुर्बान हो गया, निशावर हो गया, तो मेरे ते कृपा करो, मैनूं थापड़ा दिओ, मैं भी जाना चाहता हाँ। और दुनिया का एक अनोखा युद्ध होया, संसार के अंदर कोई मिसाल ओदी प्राप्त नहीं हो सकती। जिहड़ा मनुख अपने जीवन दे विच रब्बी भाव नूं प्राप्त कर लवे, वो इन्ना डर हो जाता है कि उन्होंने जिंदगी दे विच कोई सोचण की लोड़ नहीं पैंदी। हो अल्लाह यारखा जोगी ने जदों गल की ना, वो कहना मैं महाभारत भी पढ़िया, मैं फिर उस तो बाद रामायण भी पढ़ी, ये सारिया जंगा युद्धां नूं वेख के फिर उन्हें एक निर्णय दिता। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह यारखा जोगी कह रहे हैं। वो कहता लक्ष्मण सा बिरादर पाए तस्कीन जिगर था, सीता सी पति व्रत बन राम को घर था, बाकी है कन्हैया नहीं कोई पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही दिगर था। लक्ष्मण सा बिरादर पाए तस्कीन जिगर था, सीता सी पति व्रत बन राम को घर था, बाकी है कन्हैया नहीं कोई पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही दिगर था। कटवा दिए शे शाम ने गीता सुनाकर, रूह फूंक दी गुरु गोविंद ने औलाद कटवा कर। गुरमुख साचे का भाव पावे, जिहड़ा गुरमुख है वो जदों सच दे भाव नूं, रब्बी भाव नूं अपने हिरदे च वसाउंदा ना, वो फिर जन बनदा, और जन बन के पर उपकार करदा। हो जन पर उपकारी आए, जे वो सेवा करनगे पानी की तां भी पर उपकार वास्ते, जे लंगर वरताउणगे तां भी पर उपकार वास्ते, लेकिन जे तलवार चुकणगे तां भी अपने वास्ते नहीं, पर उपकार वास्ते। और यही कारण है कि भाई गुरदास जी ने 6वें पातशाह जी के सामने जो गल की है, बड़ योधा बहुत पर उपकारी लिखिया उत्थे। तलवार चुक के जुल्म करने वास्ते नहीं, बल्कि अपनी इज्जत आबरू नूं बचाउण वास्ते, मजलूमां दी राखी वास्ते वो तलवार भी चुकते ने, ते चुकते ने डॉक्टर की नश्तर की तरह, गंदगी कढ़ण वास्ते, सेवा करने वास्ते, पर उपकार करने वास्ते। जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाएन, हर स्यों लैन मिलाए। फिर छोटे साहिबजादे 7 साल ते 9 साल के बच्चे साडे घरां च भी ने, और अज दे बच्चों नूं इन्ना जनरेशन गैप पै चुका भी तुसीं पुछ के वेखो, एक्ट्रेस के नाम चेते होणगे, होर दूजियां दे नाम चेते होणगे, किसी फील्ड का कोई हीरो होवे उहदे नाम चेते होणगे, लेकिन बहुते बच्चों नूं जां साडे सियाणियां नूं
चार साहिबजादियां दे नाम शायद चेते ना होण, पंज प्यारिਆਂ ਦੇ नाम ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ याद ना होण, 10 पातशाहां ਦੇ नाम ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ चेते ना होण। जे कईयां ਨੂੰ पुछ के ਵੇਖੋ साडा गुरु कौन है इस वेले, ते कई तो 11, 12, 13, 14 तक पहुंच जाते हैं। ये सोझी नहीं, लेकिन वो 7 साल ते 9 साल दे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जदों कुर्बानी दिंदे हैं ना, ते मैथिली शरण गुप्त हिंदी का कवि लिखदा, कहंदा जिस कुल कौम जात के बच्चे दे सकते जू बलिदान, जिस कुल कौम जात के बच्चे दे सकते जू बलिदान, वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महान। वो कहंदा प्रेजेंट गल दी छड्डो तुसीं, वो दुखा भरे है, तकलीफां भरे है, कष्टां विच जिंदगी बतीत हो रही है, घर तो बाहर निकल के जिंदगी बतीत हो रही है, लेकिन तुसीं वेखोगे आने वाला भविख बड़ा उजला होएगा, जिथे 7 साल ते 9 साल के बच्चे कुर्बान होना जानते हैं, जिथे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह की शख्सियत होगी। ये किहड़ा जीवन है जिहड़े जीवन दे विच जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी, और उन्होंने ऑफरिंग दी जा रही है, तुसीं बच सकते हो, मुसलमान बन जाओ। वो किदां दा दिमाग होएगा, रोशन दिमाग, भी मुसलमानों के घर मौत नहीं वापरदी, तुहाडे घर कदी कोई मरिया नहीं। कोई जवाब नहीं सी उन्हां लोकां कोल। धन दौलत की गल कीती, पदवियां की गल कीती, लेकिन वो किवें निर्लेप रह के अपनी जिंदगी नूं गुरमुख साचे का भौ भावै, गुरमुख बाणी अघड़ कढ़ावै। जिहड़ा गुरमुख है वह बाणी दी राही अपनी जो अणघड़त जिंदगी है ना, उस अणघड़त जिंदगी नूं घड़दा हो, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल विच पा के जिवें सिक्के घड़दे आपां, इवें अपनी जिंदगी नूं घड़दा हो, जिवें मूर्तिकार घड़दा है। उन्होंने पूछो मूर्ति कितों प्रगट की तू, वो कहना मैं प्रगट की है जो फालतू पत्थर सी ला दिता, मैं कुछ नहीं किया, मैं फालतू लाया। और जो फालतू लथ जाए बिचों जो प्रगट होंदा है, वो गुरु अमरदास जी ने पूछ के वेख लो, कहते मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। कहते फिर जिंदगी विच जो प्राप्त होना है तो वह प्राप्त केवल ते केवल इको गल होनी भी अपने स्वरूप की पहचान होनी हो। गुरमुख साचे का भौ पावै, गुरमुख बाणी अघड़ कढ़ावै, गुरमुख निर्मल हर गुण गावै। जिहड़ा गुरमुख है जन है वह प्रभु के निर्मल गुणां नूं गाउंदा है। गुरमुख पवित्र परम पद पावै। जो रुतबा साहिबजादियां ने प्राप्त किया, जो रुतबा गुरु अमरदास जी ने प्राप्त किया, जो रुतबा गुरु के सिखां नूं प्राप्त होया, गुरमुख पवित्र परम पद पावै। फिर कहंदे गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। एक एक रोम उहदा समर्पण रहिंदा गुरु नूं। वो कदी गुरु तो पासे होके साइड ते होके ट्रैक तो पासे नहीं चलता कदी। वो गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। वो अपनी जिंदगी नूं नियारा रख के तुरदा हो, निराला रख के तुरदा हो। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। ते लास्ट पंक्ति ओदी नानक गुरमुख साच समावै। हे नानक वो गुरमुख बन के वो सच विच समा जांदा है। इहो जी जिंदगी नूं धन गुरु अमरदास पातशाह जी बयान कर रहे ने। धन धन से जन, ओ जन ओ प्रभु दे सेवक धनता जोग ने जिन हर सेविया, जिन्हां ने हरि की सेवा की, हरि का सिमरन किया, तिन्हों कुर्बानी। लेकिन इहदे मुकाबले में जिहड़े लोग मनमुखता विच फसे पए ने, सतगुरु हुण उन्हां दी गल करदे ने। पहली पंक्ति तो श्लोक महला तीजा, जिन्हां गुर नहीं भेटिया भै की नाही बिंद। जिन्हां ने गुरु का मिलाप नहीं किया, गुरु नूं भेट नहीं किया, भै की नाही बिंद, ते अपने अंदर भै नूं नहीं जानिया। हालत की आवण जावण दुख घना। उन्हां दे आण जाण दा दुख घना मैंने बहुता बनिया रहिंदा। वो कदी आ गए, कदी चले गए, कदी सुरत किते भटकी, कदी किते भटकी। अज देहधारी गुरु डम का बड़ा बोलबाला है। वो किहने पैदा किया है? भटकण वाले लोगों ने पैदा किया ना।
जिन्हां दे जीवन विच टिका नहीं। आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंद। चिंद दा भाव चिंता। उन्हां दी जिंदगी विचों कदी भी चिंता मुकदी नहीं, झोरे मुकदे नहीं। कदी भी उन्हां दी जिंदगी बेफिक्र नहीं हो सकती। कदी जिंदगी इस लैवल ते नहीं पहुंच सकती। बेगम पूरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ, ना तसवीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस दबाल, अम खूब बतनगा पाई, उहां खैर सदा मेरे पाई। सतगुरु कहते कि उन्होंने ये दात नहीं प्राप्त होनी कदी भी। जिन्हां गुर नहीं भेटिया भै की नाही बिंद, आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंद। फिर हालत किदां दी चोटां खांदे ने। कापड़ जिवें पछोड़ी है, जिवें धोबी कपड़े धोंदा ना ते उहनूं पछाड़ के मारदा, पटका के मारदा है। इस तरह पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय। नानक जो मत्थन मधाणियां ते ओह मत्थे धर्म राए। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਕਾਪੜ ਜਿਵੇਂ ਪਛੋੜੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਘੜੀਆਲ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜੀਆਲ, ਇਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, हम दोषां दा क्या हाल। ये बेचारा सट्टा सहंदा है, इन्हें कोई अवग्या भी नहीं की, सगों सानू अलर्ट करदा भी तुहाडा की हो रहा हुण। दर दरवाजा जायक है क्यों डिठो घड़ियाल, ये निर्दोषा मारी है, हम दोषां दा क्या हाल। जिहड़े असीं दोष करते हैं, पाप करते हैं, सिनर बन के बैठे हैं, साडा की हाल होएगा। फिर कहंदे घड़िए घड़िए मारिए, पहरी लहै सजाए, सोहेड़ा घड़ियाल जो दुखी रहन बिहाए। एक एक घड़ी बाद चोट बजदी, पैरां ते उहनूं सजा मिलदी है। इवें साडी हालत जिंदगी दी बनी रहिंदी जदों असीं अपने जीवन दे विचों रब्बी भै नूं पासे कर दईए। भै दा अर्थ अदब, गुरु का अदब सानूं ना पता होवे। कापड़ जिवें पछोड़ी है, घड़ी मोहत घड़ियाल, नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल। नानक पद इत्थे संबोधनी है, हे नानक सच्चे नाम बिन, सच्चे नाम तो बिना सिरों सिर तो ना चुकै जंजाल। कदी भी जंजाल, कदी चिंता, कदी झोरा, कदी फिक्र मुकदा नहीं। वो हर वेले फिक्र च ही रहिंदे। लेकिन जिहड़े लोग गुरमुख बन जाते ने, गुरु की गल करते ने ते गुरु की गल नूं समझ के वो अपनी जिंदगी विच नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ आया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। वो अपनी जिंदगी विच दुखां पापां तो मुक्त होकर जिंदगी बतीत करदे। हुण ये हालत बनी काहदे नाल? इस तरह की जिंदगी, दुखा भरी जिंदगी कित्थों प्राप्त हुई? मैं एक बारी पंक्तियां फिर दोहरा दियां। जिन्हां गुर नहीं भेटिया भै की नाही बिंद। बिंद का अर्थ भै नूं जाणिया नहीं। आवण जावण दुख घना, उन्होंने आण जाण का दुख घना दुख बनया रहिंदा, कदे ना चूकै चिंद। उन्हां दी जिंदगी विचों कदी भी चिंता मुकी नहीं। वो इन्ने दुखी ने, कापड़ जिवें पछोड़ी है, जिवें कपड़ा निचोड़ीदा है, कपड़े नूं पटका के मारदा धोबी। फिर दूजे नंबर ते घड़ी मोहत घड़ियाल। हर चसे बाद, हर घड़ी बाद, हर समय उते जिवें चोटां पैंदियां घड़ियाल दे उत्ते। नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल। इहदा कारण सतगुरु ने लभ्या, वो साडे सामने दर्ज किया अगले श्लोक में। सतगुरु कहंदे तेरे भवन ढूंढी सज्जणा। तेरे भवन का अर्थ है तिन्ना भवनां विच, मात लोक, पताल लोक, आकाश लोक। मैं चारे पासे, कहण तो भाव हर पासे झात मार के वेखी, सज्जणा ओ सज्जणा, हे सज्जणा। ते मैं इस निर्णय ते पहुंचिया हाँ, हो मैं बुरी जगत
जगत के तत्ते नूं सिहारी है। इहदा अर्थ जगत विच संसार विच हौमे सब तो बुरी चीज़ है। ये पुआड़े खड़े करती है क्योंकि हौमे नावे नाल विरोध है। दोए ना बसें एक ठाएं। मैं परसों किते समागम विच हाज़री भर रहा सा, मैं बेनती की हौमे ते नाम इस तरह एक दूजे के विरोधी ने जिमें दिन ते रात ने। आपां जदों अपना जीवन जिउंदे आ, कोई मनुख साडे विचों किड्डा स्कॉलर होवे, किड्डा विग्यानी होवे, किड्डा पढ़िया लिखिया होवे, अनपढ़ होवे, असीं दिन ते रात इकट्ठे नहीं वेख सकते। जां तां दिन वेखांगे जां रात वेखांगे, इक्को गल हो सकदी। लेकिन कदी भी कंबाइंड रूप दे विच भी दिन ते रात इकट्ठे होण, ऐसी गल नहीं हो सकती। इवें ही जां तां जीवन विच हौमे प्राप्त की जा सकती है जां फिर नाम प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु कहते एक गल हो सकती जिंदगी दे विच, एक नूं त्यागना पैंदा है ते एक नूं धारण करना पैंदा है। जिहड़े लोग हौमे वाले पासे तुर पैंदे है, हौ मारो हौ बंधों छोड़ो मुख ते ए बबाड़े, हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, गुणी ज्ञानी सूर हम दाते, ए बुध कबे ना नासी। वो हर वेले हौमे की गल करते, हंकार की गल करते, मैं की गल करते हो। ना झुर हीअड़े सच चौ। देखो सतगुरु किवें धीरज दिंदे है, क्योंकि उन्होंने तजर्बा भी मैं बहुत तड़फदा रहा, बड़ा लंबा समा फिरदा रहा ते लोकी भी फिरदे ने। इस करके कहंदे हीअड़े हिरदे, हे मेरे हिरदे। हुण ये संबोधनी लफ्ज है हीअड़े, इनू जे हीअड़ा पढ़ांगे ना इहदा अर्थ ही बदल जाएगा। दुलामा ला के पढ़ांगे उहदा अर्थ बन जाएगा हीअड़ा भाव हिरदे विच। इस करके ये हीअड़े एक लां दे ना संबोधनी है। हे मेरे हिरदे ना झुर, झूर ना, फिक्र ना कर, चिंता ना कर, धीरज बना रहे। जिवें कोई बंदा डिग्या होवे उहनूं कोई बांह तो फड़ के सियाणा बंदा खड़ा कर दे, कहंदे घबरा ना, मैं तेरे नाल खड़ा। ना झुर हीअड़े सच चौ, कहंदे एक काम कर, तू सच दा सिमरन करया कर, सच नूं जपिया कर। नानक सचो सच। फिर जदों तू सच नूं जपेगा ना, तेरी जिंदगी दे विच जिधर झात मारेगा तैनूं एक सोझी प्राप्त होएगी। ए नेत्रो मेरेओ हर तुम्हें जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। ए बेश संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। तैनूं रब तो सिवा कुछ दिखाई नहीं देना। फिर कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। नानक सचो सच, तेरे अंदर सच पैदा हो गया ना, तो फिर तू जिधर झात मारेगा तेन सच नजर आएगा। सच सदा थिरन वाला रब नजर आएगा। तेरे भवन ढूंढी सजना, हे सज्जन मैं तिन्ना भवनां विच ढूंढ ढूंढ के वेखिया, ढूंढदा रहिंदा हां, ढूंढदा हां। हौमै बुरी जगत, ए हौमै जगत विच बहुत बुरी वस्तु है। ना झुर हीअड़े, हे मेरे हिरदे झूर ना। एक काम कर, सच चो, सच नूं सिमरिया कर। नानक सचो सच, तेरी जिंदगी विच निरोल सच की प्राप्ति हो जानी। तैनूं तेरा जीवन सच रूप बन जाना। तेरे विच ते रब विच कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर तू रब का रूप बन जाएगा। सतगुरु पातशाह जी ने यह कृपा की ते फिर पौड़ी दे अंदर साहिब जी कृपा कर दे, गुरमुख आपे बख्शियों हर नाम समाने। जिन्होंने इस झमेले विचों कढ़ लिया, जिन्हां गुर नहीं भेटिया भै की नाही बिंद, हौमे तो नलेप कर दिता, उन्होंने गुरु ने कृपा करके आप बख्शिश की। गुरमुख आपे बख्शियों हर नाम समाने। वो हरी नाम में समा गए। उन्होंने समझ लग गई जिंदगी की, भी जिंदगी किदां दी जिउणी है। मैं भाई गुरदास जी के वचन तुहाडे नाल साझे करा। सिख का जीवन किदां दा चाहीदा है। वो कहंदे हों सद के तेना गुरसिखा, सतगुर नो मिल आप गवाया। जिन्हां ने सतगुरु का मिलाप करके आपा भाव गवा दिता, हौमे नूं गवा दिता, हों सद के तिन्हां गुरसिखा, सतगुर नो मिल आप गवाया। हों सदके तेना गुरसिखा, करन उदासी अंदर माया। वो भजदे नहीं, माया कमांदे रज के।
उदम करेंदिया जियो तू कमावदिया सुख पहुंच, घाल खाए के छथों दे। हों सदके तेना गुरसिखा करन उदासी अंदर माया। हों सदके तेना गुरसिखा गुरमत गुर चरनी चित लाया। उन्होंने गुरमत दी राही गुरु दे चरना नाल चित जोड़ लिया। वो केवल ये नहीं करते मत्था टेकिया परिक्रमा कीतियां, ये सारा कुछ करना सी, लेकिन साडा बहुतियां दा चित नहीं जुड़ता, चित होर पासे जुड़ता है। और उही कुछ प्राप्त हुंदा है जिस छेती चित लाया। जिस पासे मन जोड़ांगे चित जोड़ांगे प्राप्ति ओदी होनी। जे गुरु नूं चाहुंदे गुरु साडा बने ते फिर गुरु नाल चित जोड़ना पैगा। गुरमत गुर चरनी चित लाया। फिर अगली गल कहंदे जिहड़ा प्रभु दा सेवक है, गुरु का सिख है, हों सदके तेना गुरसिखा गुरसिख दे गुरसिख मिलाया। वो गुरु की सिक्ख्या का अगे संचार करता, हो केवल अपने तक सीमित नहीं करता भी जो कुछ मैनू प्राप्त होया हुण मैं ब्रह्म ज्ञानी बन के बह जाना। नहीं, वो अपनी जिंदगी दे विच इहनूं वंडदा है, प्रशादे भी वंडदा है, लंगर दी चाह पानी की सेवा करता है, लेकिन नाल दी नाल वो गुरु के गुणां नूं अगे वंडदा है। ते ताहीं तां गुरु रामदास पातशाह कहंदे जा नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावे। गुरसिख दे गुरसिख मिलाया, गुरु की सिक्ख्या दे के गुरु के सिख नूं रब दे नाल गुरु दे नाल मिलाउंदा हो। हों सदके तेना गुरसिखा आसा विच निराश बिलाया। जिहड़ा अपनी जिंदगी विच आशावां तो रहत हो जाता है, घर विच बैठा ही निराश हो जाता, जिवें जोगी लोग निराश होकर निकलते हैं। भाई साहब कहते सतगुर का उपदेश दृढ़ाया। जिन्हों ने यह उपदेश दृढ़ किया उन्होंने ये जिंदगी प्राप्त हो गई। जो पौड़ी के अंदर सतगुरु पातशाह बख्शिश करते हैं, गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने, वो हरि नाम वे समा गए आपे भगती लायोन। उन्होंने अपनी भगती विच ला दिता गुर शब्द निशाने, और गुरु दे शब्द ही राही उन्होंने निशान पा दिता, सही पा दी भी ये रब्बी बंदे ने, ये हर के सेवक ने, ये हर जन ने। जिवें कोई बंदा लिस्ट लैके बैठा होवे ते वो चो टिक कर देवे, टिक कर दिता उन्होंने, गुरु दे शब्द का निशान पा दिता उहदे उपर, जिन्हों असीं पढ़दे हां नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जापै जाए। गुर शब्द निशाने, गुरु दे शब्द ही राही निशान पा दिता उन्होंने उत्ते, सही पा दी भी ये रब्बी दरगाह विच प्रवान ने। सन्मुख सदा सोहणे सच्चा दर जाने। जिहड़े सन्मुख ने, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियों रहे गुर नाले। गुर के चरण हिरदय ध्याए अंतर आत्मा संभाले, आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोय, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जिन्होंने ये जीवन प्राप्त हो गया ना सदा सोहणे, वो हमेशा वास्ते हैंडसम रहिंदे है, ब्यूटीफुल रहिंदे हो। नानक ते जन सोहणे जो रत्ते हर रंग लाए, सही सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने, हर धन जी नहीं संजिया सही गंभीर अपार जियो। उन्होंने ब्यूटी पार्लर ते जाण दी लोड़ नहीं पैंदी, उन्होंने केसां नूं रंगण दी लोड़ नहीं पैंदी, होर कोई काम करन दी लोड़ नहीं पैंदी। वो केवल ते केवल हर पल अपनी सुंदरता नूं बना के रखदे हो। सन्मुख सदा सोहणे, जे हुण सोहणे बनना ना ते सतगुरु कहंदे गुरु दे सन्मुख हो जा, बस होर तैनूं करन दी लोड़ नहीं। जिहड़ा गुरु दे सन्मुख होएगा केसां दी बेअदबी नहीं करेगा, दस्तार दी संभाल करेगा, ककारां दी संभाल करेगा। ते फिर टियानवी दे कहण मुताबिक दुनिया का सब तो मनुख कौन है? वो कलगीधर पातशाह जी दा गुरु का सिख आओ। सच्चा दर जाने ते सच्चे दे दर दे उत्ते वो जाने गए, ये मेरा है, ये मेरा प्यारा है। इत्थे उत्थे मुक्त है जिन नाम पछाणे, जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच अपने अंदरों नाम नूं पछाणिया। अंदरों पछाणन तो बाद फिर रब दी दरगाह दा लेखा जोखा करके उहदे प्रवान होके पूरी खलकत विचों पछाण लिया। फरीदा खालक खलक मैं खलक बसे रब माहे, मंदा किसनों आखी है जां तिस बिन कोई ना है। जिन्हां नूं इह जिंदगी प्राप्त हो गई ना, सतगुरु कहंदे वो इत्थे भी ते अगे भी मुक्त है। उन्होंने कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि मुक्ति जिहड़ी है वो ना तां
किसी कर्म कांड के उत्ते टिकी हुई, तेरा संस्कार किवें कीता इहने, होर की कीता। सतगुरु अर्जन पातशाह जी नूं पुछ के वेखिए भी सच्चे पातशाह मुकत कौन हो सकता।